Students, we have discussed this slide also, that is why economic problem arises. I have told you this slide or done the discussion in detail, so don't waste upon time upon this slide. And moving further, we can have a next slide, that is economy and its components. I told you the meaning of economics, that it is a system in which people get a living to satisfy their wants to the process various economic activities. Now, we have discussed earlier that economy is a system in which various economic activities are performed, and we have discussed the meaning of economic activities also. That is, economic activities are those activities which are done for profit making or revenue generation. So what are basically those economic activities? What are the categorization of that? So in economics, and making the things simpler, we can divide it into the four parts. First one is the production. If we discuss the term production in a common sense, we can answer that प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, किसी भी चीज़ को बनाना ही प्रोडक्शन कहलाता है. बट इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन हैव सम डिफरेंट मीनिंग. इन इकोनॉमिक्स वी कैन से दैट इफ वी ऐड और इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए commodity or a good, then we can say that प्रोडक्शन इज हैपनिंग. जब हम किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस को बढ़ा देते हैं या इंक्रीज कर देते हैं, तब इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि हमने प्रोडक्शन को परफॉर्म किया है. और इकोनॉमिक्स में इसी इम्पोर्टेंस को ही यूटिलिटी कहा जाता है. UTILITY, यूटिलिटी. इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर देर इज़ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ सैंड लाइंग ओवर देयर, एंड एट दैट प्लेस द वैल्यू ऑफ सैंड इज ज़ीरो. बट व्हेन वी शिफ्ट द सेम सैंड and loaded in a truck and shifted to a construction site, then we definitely increase or enhance the importance or utility of a sand. So by this example we can say that when we increase the commodity, when we increase the importance of a commodity from a place where it is available in bulk to a place where it is available in scarce, then we can say that utility increases and production happens. So in production process, utility generates or importance generates. Now moving on to second economic activities, that is the consumption. By consumption, it is a very simple term बच्चों. Consumption basically means consuming something. So when we as an individual consume different goods or services to satisfy our wants, then we can say that consumption happens. Or its in-depth meaning is that in the consumption process, utility finishes out or destroys. In the production process, we generate the utility, and by consuming that commodity, by the consumption of a particular commodity, we finishes or destroys that particular यूटिलिटी. यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो हमने उस कमोडिटी की यूटिलिटी को जनरेट किया था, एनहेंस किया था,
कंजप्शन प्रोसेस में जैसे ही हम उस वस्तु या गुड को इस्तेमाल करते हैं, उस यूटिलिटी को हम कंज्यूम करके ख़त्म कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रोडक्शन में यूटिलिटी का जनरेशन होता है और कंजप्शन में यूटिलिटी का डिस्ट्रक्शन होता है। नाउ द थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इज दैट एक्टिविटी which relates to future income generation. It is that part of production which relates to further income generation. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कैपिटल फॉर्मेशन सिखाया था, इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन is part of production. So first of all, we have to clear this thing that for production purpose some factors are required, that is raw materials. For example, if we want to manufacture a table, what things are required? Some axes are required, wood is required, furniture equipments are required, nails are required, hammer is required. So all such things are known as factors of production. So if we want to use these things, we have to pay something in return for that, because these factors have a price. इन्हें हमें खरीदने के लिए कुछ पैसा हमें देना पड़ेगा। So जब भी हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो बदले में हमें उनको यूज़ करने के बदले कुछ पैसा रिटर्न करना पड़ता है। इसे ही कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ के लिए बच्चों अभी इतना मीनिंग सफिशिएंट है, इसका और इन डेप्थ मीनिंग भी होता है, लेकिन मैं वो आगे चल के आपसे डिस्कशन करूँगा। इस स्लाइड में केवल 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही दे रखी है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा सिखाता हूँ, एक्सचेंज। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सचेंज भी होती है। So exchange basically means buying and selling of commodities, trading of commodities, trade of goods and services is known as exchange. Now here comes the factors of production. In broad manner, factors of production are of 4 types. So first of all, let us clear in mind that what are the factors of production. Factors of production are the things by which or with the help of which we perform production process. So in broad manner they are categorized into 4 parts. First one is the land factor, second one is the labor, third one is the capital, and fourth one is the entrepreneur. If we want to use land factor, then we have to pay in return the rent as a income to the land owner. यानी कि जिसकी ज़मीन है, अगर हमें उसे इस्तेमाल करना है तो बदले में इस फैक्टर को जो इनकम जनरेट होगी उसे कहा जाएगा रेंट। सेकंड फैक्टर होता है बेटा लेबर। हियर you have to clear that labor and laborer are 2 different terms. Laborer is a person who performs labor, जैसे श्रम और श्रमिक in Hindi. Labor is the work which a laborer does. So लेबरर को अपने लेबर यानी कि काम करने के बदले जो पैसा दिया जाएगा उसे कहा जाता है वेजेस। थर्ड पर आते हैं, थर्ड फैक्टर कहलाता है बच्चों कैपिटल। कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज इन्वेस्टेड, आइदर इन्वेस्टेड और यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम। तो कैपिटल को एज ए इनकम जनरेशन के सोर्स में जो भी चीज़ मिलेगा या इन रिटर्न मिलेगा उसे कहा जाता है इंटरेस्ट। और फोर्थ फैक्टर होता है इसमें एंटरप्रेन्योर। ये एक नई टर्म आ रही है बच्चों,
एंटरप्रेन्योर का वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए. एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु परफॉर्म्स innovations, and by innovative ideas he bears the whole sole risk of his business. यानी कि एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो अपने नवीन आइडिया से, अपने नए आइडिया से, अपने इनोवेशन से अपने बिजनेस की होल सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि प्रॉफिट और लॉस की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद बियर करता है. तो एंटरप्रेन्योर को अपने काम के बदले में, उसकी मेहनत के बदले में जो रिज़ल्ट मिलता है उसे प्रॉफिट कहा जाता है. हम पॉजिटिव साइड लेकर चलते हैं, हम लॉस को इग्नोर करते हैं, पॉजिटिव साइड पर चलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर को अपने काम के बदले में मिलता है प्रॉफिट. तो इस तरह से इन 4 फैक्टर्स की मदद से प्रोडक्शन को परफॉर्म किया जाता है. लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. और इन चारों को अपने काम के बदले में जो इनकम जनरेट होगी उसे फैक्टर इनकम कहा जाएगा. लैंड फैक्टर को जो इनकम जनरेट होगी वो होगी रेंट. लेबर को जो इनकम जनरेट होगी वो होगी वेजेस. कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. इस तरह से हम इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कंसेप्ट को स्टडी करते हैं बच्चों. गुड मॉर्निंग बच्चों. आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स को लेकर. तो बेटा अगर किसी आम भाषा में अगर पूछा जाए कि स्टैटिस्टिक्स को डिफ़ाइन करिए तो वह यही जवाब देगा कि इट इज़ ए स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. और अगर देखा जाए तो एक तरह से ये सही भी है ना, लेकिन हमने उस क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्वायर किया है, यानी कि उसके पीछे कोई सिस्टम होगा, कोई मेथड होगा, कोई टेक्निक होगी टू कलेक्ट द क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, है ना. इसलिए स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हो सकता है कोई रॉ इन्फॉर्मेशन ही हो, यानी कि केवल हमारे पास सिंपली नंबर्स ही हों. तो उन नंबर्स को ज़रूरत पड़ेगी कि पहले उन्हें क्लासीफाई किया जाए, फिर टेबल में कन्वर्ट किया जाए, फिर सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया जाए. तो एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हमें उन सभी मेथड्स, उन सभी टेक्निक्स जो कि उस डेटा को कंडेंस करेंगे और फिर उससे हम कैसे एवरेजेस या परसेंटेज निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत पड़ती है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए बेटा स्टैटिस्टिक्स को 2 सेंस में समझाया जाता है ना. एक सेंस होता है प्लूरल सेंस और एक होता है सिंगुलर सेंस, है ना. तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को प्लूरल सेंस में डिस्कस करते हैं. तो प्लूरल सेंस का मतलब ये है बेटा कि इट रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा सच एज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, है ना. अब इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि प्लूरल सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को कैसे समझेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं कि काउ हैज़ ए 4 legs, है ना. अब 4 legs क्या है बेटा कि एक नंबर है ना. एक और एग्ज़ाम्पल सुनिए कि मिस्टर एक्स हैज़ ए 200 रुपीज़ इन हिज पॉकेट और मिस्टर एक्स हैज़ 200 रुपीज़ एज पॉकेट मनी विच ही रिसीव्ड टुडे. तो ये हम क्या बोल रहे हैं बेटा, मिस्टर एक्स या एक काउ के 4 legs हैं, ये इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है ना. न्यूमेरिकल तो है ये चीज़, लेकिन इट इज़ ए इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन. अब हम इसे अगर कलेक्टिव मैनर में या एवरेज मैनर में अगर हम बात करें तो कैसे कहा जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि द एवरेज हाइट ऑफ ए काउ इज़ दिस, यानी कि 3 feet और 4 feet. या हम ये कह सकते हैं कि द एवरेज द पॉकेट मनी एवरेज ऑफ दीज पर्टिकुलर स्टूडेंट्स इज़ 200 रुपीज़ और 300 रुपीज़. तो जब हम उस इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट यानी कि कलेक्टिव मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तब वो न्यूमेरिकल डेटा क्या बनता है, स्टैटिस्टिक्स बनता है ना.
तो इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन कभी भी स्टेटिस्टिक्स नहीं कही जाएगी जब हम उसे कलेक्टिव मैनर में, एग्रीगेट मैनर में रिप्रेजेंट करेंगे, तभी वो कंसेप्ट क्या बनेगा, स्टेटिस्टिक्स का बनेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि जो भी स्टेटिस्टिक्स है वो डेटा है, लेकिन सभी डेटा स्टेटिस्टिक्स हो जाएंगे ये श्योर नहीं है, ये 100% गलत बात है। क्योंकि सभी डेटा स्टेटिस्टिक्स क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कौन सा डेटा केवल स्टेट्स में काउंट ऑन होगा बेटा, जो एग्रीगेट होगा, है ना, जो ऑन एन एवरेज डिक्लेयर किया जाएगा। इन इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को कभी भी स्टेट्स नहीं कहा जा सकता है। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि इन न्यूमेरिकल डेटा को ही स्टेट्स के प्लूरल सेंस में कंसिडर किया जाए? इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा कि अगर उसमें एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब, इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। अगर आपसे कहा जाए कि बिरला शिक्षा केंद्र में 1000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यानी कि 1000 बच्चे हैं, तो स्टेट्स की टर्म में इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना, क्योंकि ये 1000 केवल एक नंबर है, ये किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कन्वे नहीं कर रहा है जिससे हम कोई काम में इस फर्दर इन्फॉर्मेशन को काम में ले सकें। लेकिन अगर मैं इसी बात को ऐसे कहता हूँ कि 300 स्टूडेंट्स यहाँ पर साइंस में पढ़ते हैं, 300 स्टूडेंट्स या 400 यहाँ पर कॉमर्स में पढ़ते हैं, या 500 यहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ते हैं, तब ये इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी बेटा मेरे लिए, अफेक्टिव हो जाएगी, और तब जाकर ये कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हम इससे जनरेट कर सकते हैं। तो यही मेरा कहना है कि जब तक वो इन्फॉर्मेशन एग्रीगेट मैनर में ना हो, है ना, एग्रीगेट मैनर में यानी कि कलेक्टिव मैनर में ना हो, और साथ साथ कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कन्वे ना कर रही हो, तब तक हम उसे स्टेट्स में कंसिडर नहीं करते हैं। दूसरी बात, वही डेटा स्टेट्स के प्लूरल सेंस में कंसिडर किए जाते हैं जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो सकते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब बेटा डेटा दो तरह का हो सकता है, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव, है ना। क्वांटिटेटिव मतलब जिसे हम नंबर्स में न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन जहाँ पर हो सकता है, दैट इज़ द क्वांटिटेटिव डेटा। वाइल जहाँ पर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कशन करके उसे जैसे गुड, वेरी गुड या एक्सीलेंट में रैंक कर रहे हैं, रिच पुअर में कैटेगराइज कर रहे हैं, है ना। ऑनेस्टी एक क्वालिटेटिव डेटा है। तो ऐसे फीचर्स जिनका न्यूमेरिकल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, वो स्टेट्स में कंसिडर नहीं होते हैं। इसके अलावा एक और फीचर होता है बेटा इसका कि इट इज़ अफेक्टेड बाई ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने कहा कि इस साल ऑन एन एवरेज 5% प्राइजेज़ में इंक्रीमेंट हुआ है। अब वो ये तो एक सिंपल इन्फॉर्मेशन हो गई कि 5% प्राइजेस में इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन उस प्राइजेस के इंक्रीमेंट होने के पीछे लॉट ऑफ रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल, लाइक रिडक्शन इन सप्लाई, हो सकता है सप्लाई कम हो गई हो, या डिमांड इंक्रीज़ हो गई हो, या हो सकता है कि पावर की शॉर्टेज रही हो, या फिर हो सकता है कि जो वेजेस हैं उनमें इंक्रीज़ हो गया हो, टैक्सेस बढ़ गए हों, बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ रीजंस। तो जो स्टेट्स का जो मीनिंग होता है, इट इज़ अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेज। नेक्स्ट फीचर है बेटा, इट इज़ अफेक्टेड, इट हैव ए रीजनेबल एक्यूरेसी। अब रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब क्या है? रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब यह है कि एक्यूरेसी उस स्टेट्स की डिपेंड करती है हमारे इन्वेस्टिगेशन के पर्पस पर, कि हाउ अफेक्टिव वी डील विद द इन्वेस्टिगेशन। उसके हमारे कैसे रिसोर्सेज रहे हैं, हमारे पास में क्या संसाधन रहे हैं, कितनी मैन पावर रही है, कितनी प्रिसाइजली हमने मेथड्स को यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेसी का लेवल अप और डाउन हो सकता है। ठीक है बेटा। इसके बाद एक और ये बात होती है कि हम जब भी स्टेट्स को प्लूरल सेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ आइदर एस्टिमेटेड और एन्यूमरेटेड, है ना। अब एस्टिमेटेड और एन्यूमरेटेड वर्ड में क्या डिफरेंस है? एस्टिमेटेड वर्ड का मतलब होता है जब मैं
लगभग सेम ही है कि अनुमान के आधार पर, है ना, यानी कि अंदाजन हम बोल दें। जैसे मान लीजिए कि हमारे पीएम ने कहीं पर रैली की, तो हम ये कह सकते हैं कि उस रैली में लगभग 2 लाख लोग होंगे। ऐसा तो है ही नहीं कि हमने वन मैन को या एक एक व्यक्ति को हमने चेक करके उसकी काउंटिंग करके टिक मार्क करके रैली में एंट्रेंस दी होगी, नहीं, वहाँ पर एन्यूमरेशन मेथड ही काम में आता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था बेटा प्लूरल सेंस का। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एज ए सिंगुलर सेंस। तो सिंगुलर सेंस का मतलब होता है कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को डिफ़ाइन किया जा सकता है कि वो सभी टेक्निक्स और जो मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके उन क्वांटिटेटिव डेटा को अरेंज किया जाता है ना। एंड व्हाट आर दोज टेक्निक्स और मेथड्स? दे आर, सबसे पहले होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि जब भी हम किसी स्टेट्स की स्टडी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्टेज 1 यानी कि सबसे पहली स्टेज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी कि ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोजेनिटी, है ना, यानी कि जो सिमिलर डेटा है उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले डेटा हैं यानी कि जो हेट्रोजीनस है उन्हें डिफरेंट ग्रुप में रखा जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। देन कम्स प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। प्रेजेंटेशन में हम टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना बेटा, ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं, डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, कर्व्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। देन कम्स एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस में हम डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं, है ना, मीन का यूज़ करते हैं, मीडियन का यूज़ करते हैं, मोड का यूज़ करते हैं, कोरिलेशन का यूज़ करते हैं, इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। ये सारे हमें हेल्प करते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा में। और इसके बाद आता है बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। लास्ट में आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन से मतलब है कि हम इन सारे कंक्लूजन को कैसे, मतलब क्या हम फोरकास्ट क्या कर रहे हैं, क्या ट्रेंड शो कर रहे हैं, यानी कि हमने सारे रिजल्ट्स को ले लिया, सारे एनालिसिस को ले लिया। अब उस एनालिसिस के बेस पर हम क्या फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि अगर ये डेटाज अगर ऐसे हैं तो आने वाला समय ऐसा होगा, है ना, इस कंसेप्ट में हमें ये ट्रेंड देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें कहलाती है इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। ठीक है बेटा, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।